Hello, welcome. Today's topic of discussion is empirical formula and the molecular formula. Molecular formula. Now, what's molecular formula? Molecular formula is defined as the total number of atoms, exact number of atoms present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसी को हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं. इट इज डिफाइंड एज the exact number of molecules present in the compound. Exact number of atoms That is gender, प्रेजेंट इन द कंपाउंड. religion and एक caste कंपाउंड में relation जो है, एग्जैक्ट gender नंबर ऑफ जो है, एटम्स कितने हैं, उसका इसी को हम हमारा क्या बोलते हैं, topic number 4 मॉलिक्यूलर रहेगा आज फॉर्मूला. का. नाउ Topic number 4. empirical formula. Empirical Hello, dear formula. students. Hope you are fine. Now, this So, welcome empirical to formula Complex is Mind the Blowing Platform of simplest Physics Wala. whole number ratio of the molecular formula. It is the simplest whole number ratio. It is the simplest whole number ratio of the molecular formula. जो molecular formula होगी उसी का simplest whole number ratio. It is the simplest whole number ratio in the compound. It is the simplest whole number ratio in the compound. That is the empirical formula. Sir, for example, C4H8. मेरे पास एक कंपाउंड है, इसकी फॉर्मूला C4H8 है. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है सर किस में, एम्पेरिकल फॉर्मूला में. तो मैं देखूंगा 4:8, that will be 4 1 are 4, 4 2 are 8, and its empirical formula will be C1H2. This is 1:2. This 1:2 is the simplest whole number ratio. Simplest whole number ratio. इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा, C6H12O6 की. As you know, this is glucose, and glucose की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर? इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 6:12:6. इसका मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन. अब इसका सिंपलेस्ट रेशो सर वो क्या आएगा? सिंपलेस्ट रेशो 6:12:6. 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 1 are 6. That will be 1:2:1, and its empirical formula will be C1H2O1. सर क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज is
C6H12O6, and its empirical formula is C1H2O1. इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेंगे, C2H4. मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है सर, अब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या? दैट इज 2:4. अब मुझे इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालनी है. दैट विल बी 2 1 or 2 2 2 or 4. दैट विल बी C1H2. दिस इज द empirical formula. Now, what is empirical formula? Empirical formula is the simplest whole number ratio. इसी तरह अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालनी हो तो मैं डिवाइड करूंगा किसी फैक्टर से, दैट इज n. That will be the multiplication factor. अब इसी तरह अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है तो मैं इनटू करूंगा n. दिस n, ये n हमें कहां से मिलेगा? या तो हम n को निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास divide by empirical formula mass. Very important. Molecular formula mass and the empirical formula. N is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. या तो आप verbally निकाल सकते हैं. देखिए बच्चे, 2:4 है मेरे पास. अब ये किस टेबल में आता है? सर 2 के टेबल में आएगा तो मैं डिवाइड 2 करूंगा. 2 1 और 2 2 2 और 4. तो इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगी? 1:2. इज इट क्लियर? तो यहां पर n की वैल्यू क्या है? सर यहां पर n की वैल्यू 2 है. नाउ अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दी है तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालनी है तो डिवाइड करना है n से. इसी तरह एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपके पास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है तो इनटू करना है n के साथ. सर व्हाट इज n? n इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर and it is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. Yes, simple. Molecular mass divided by empirical mass. N is equal to molecular mass divided by empirical mass. Is it clear? For example, this is the question. A compound has empirical formula. A compound has empirical formula CH2O and its molecular formula mass. Molecular mass is 240 gram. What will be its molecular formula? अभी easy है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है तो इनटू n करेंगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हमने n फाइंड करना है. To find the n, we have a formula. N is equal to
molecular formula mass divide by empirical formula mass. Now, what is molecular formula mass? This molecular formula mass is given, that is 240. Is it clear? That will be 240 divided by, now what is the empirical formula mass? Sir, empirical formula is CH2O. CH2O. Now mass of carbon is 12. Is it clear? Mass of carbon is 12. हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, मेरे पास कितने हाइड्रोजन? 2 है, तो 2 का क्या आएगा? इंटू 2 प्लस 16, that will be 30. That will be 30. Is it clear? That will be 30. Now molecular formula divided by empirical formula. What is empirical formula mass? That is 30. That will be divided by 30. 0 से 0 कट गया, 3 1 आर 3 3 8 आर. नाउ ये 8 क्या है? दिस 8 इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. आपके पास क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. आपको क्या निकालनी है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला को इंटू 8 करेंगे या n करेंगे, दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, empirical formula is CH2O into 8, that will be C8 A2R 16 H16 O8. This is the molecular formula. Is it clear? Yeah. Let us take the example. CH4. This is the methane. Now CH4 है यहां पे. अब इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1:4 है. ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट रेशियो में है. इसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या है? CH4, दैट इज 1:4. क्योंकि 1 से सिंपल कुछ नहीं होता. 1 से सिंपल कुछ नहीं हो सकता. इज इट क्लियर? और याद रखना, वी कांट टेक दीज वैल्यूज एज द फ्रैक्शनल वैल्यूज. ठीक है ना? क्योंकि एटम फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता. या तो एक एटम होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 5, या तो 6 7 8. इसी तरह 1.5 एग्जिस्ट नहीं होता है, 2.1 एग्जिस्ट नहीं होता है, 2.2 एटम एग्जिस्ट नहीं होता है. नाउ द क्वेश्चन इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आर CH2O. Same question. Do try it. The empirical formula and the molecular mass of the compound are. Now the solution. Empirical formula है क्या? Empirical formula is CH2O. This is the empirical formula. Now आपके पास दिया क्या है? Molecular mass. Now बेटे molecular mass is 180. आपने निकालना क्या है? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिया क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है तो इंटू करेंगे n. ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या आएगी? सर एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इज इट क्लियर? empirical formula into n, empirical formula into n is equal to molecular formula. अब मेरे बेटे molecular formula. now n किसके बराबर है? this n is equal to molecular formula divided by empirical formula. now what is the molecular formula mass? It is 180. and empirical formula of CH2O, कार्बन 12 ऑक्सीजन, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, मेरे पास 2 है, 2 + 16, that will be
30. Divide by 30. 3 ones are 3. Was a 15. 3 6 are 18. 3 6 are 18. Now, molecular formula is equal to, sir, empirical formula, that is CH2O. CH2O into 6, that will be C6H12O6. बस, it is it. एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर्मूला एक याद रखनी है, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, या ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है। सर कौन सी? अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालनी है तो डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इसी तरह अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है और आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है तो इनटू कीजिए n। सर n कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। Now, another type of question is like this. The simplest formula, the simplest formula of the compound, the simplest formula of the compound containing 50% of X, इसका atomic mass is 10 AMU. इसका atomic mass is 10 AMU and 50% of Y, इसका atomic mass is 20 AMU. We have to find the simplest formula. अब बेटे याद रखना, इसके लिए हमें क्या करना है? बेटा याद रखिए, we have to draw a table like this. Solution. पहले हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ X एंड 50% ऑफ Y, फर्स्ट थिंग जो हमने करना है दैट इज हमने एलिमेंट्स को लिखना है। नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स गिवन? सर दैट इज X एंड Y। पहले हम X लिखेंगे यहां पे, देन यहां पे Y लिखेंगे, ठीक है ना? अब इसके बाद नाउ द सेकेंड थिंग जो आपने करना है, इनकी परसेंटेज जो दी गई हो या फ्रैक्शन दिया गया हो वही हमने लिखना है। परसेंटेज और फ्रैक्शन और रेशो, परसेंटेज और रेशो और फ्रैक्शन जो दिया गया हो उसे हमने लिखना है। दैट इज, सर इसकी परसेंटेज दी गई है X की, दैट इज X की परसेंटेज कितनी है? 50%। तो क्या लिखेंगे? सर 50। अब इसी तरह Y की परसेंटेज दी गई है तो क्या लिखेंगे? 50। इज इट क्लियर? नाउ इसके बाद
और एक कॉलम लगाना है। इस कॉलम में हमने एटॉमिक मास लिखना है रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का। सर क्या? एटॉमिक मास रखना है रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स का। सर एटॉमिक मास क्या क्या है? सर एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। सर व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एक्स? अब मेरे बेटे एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज 10। सर व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ वाई? दैट इज 20। अब और एक कॉलम देना है। अब इस कॉलम में रेशो करना है। सर किसका? सर परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। सर क्या? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, या रेशो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, या फ्रैक्शन डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो क्या आएगा? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है नीट में। तो क्या आएगा? सर परसेंटेज क्या है? 50। तो 50 डिवाइड बाई 10। अब इसी तरह 50 डिवाइड बाई 20, दैट विल बी 0 से 0 कट, दैट विल बी 5। अब 0 से 0 कट, दैट विल बी 2.5। अब बेटे जो सिंपलेस्ट रेशो है, जो सिंपलेस्ट रेशो है, उससे हमने इसको डिवाइड करना है जो हमें मिला। हाँ, डिवाइड बाय सिंपलेस्ट रेशो। तो 5 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? सर 5 डिवाइड बाई 2.5। इज इट क्लियर? इसी तरह 2.5 डिवाइड बाई 2.5। when we divide 5 divided by 2.5, it will be 4. 2.5, that will be 10. Will be 10. Yeah, that's 2. That's 2. And that is 1. This is your required formula. Now your formula is x2 y1. This is the empirical formula. This is the empirical formula. इंपॉर्टेंट है, याद रखना कैसे टैकल करना है ऐसे क्वेश्चंस को। सर क्या? सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स atomic mass is 10 AMU and 50% of Y atomic mass is 20 AMU. Now पहले हमने क्या करना है? हमने पहले एलिमेंट्स को लिखना है, दैट इज x और y को लिखना है। इसके बाद हमने जो हमें रेशो दिया गया हो, या परसेंटेज दी गई हो, या फ्रैक्शन दिया गया हो, उसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद हमने एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड थिंग जो हमने करना है, दैट इज इसको अब डिवाइड करना है। सर किसको? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास को। तो वहां से जो सिंपलेस्ट रेशो आएगा उससे हमने आंसर को डिवाइड करना है। तो रिक्वायर्ड थिंग इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस इट इज सिंपल। ठीक है ना? अनदर क्वेश्चन। Now another question is, this question is from NEET 2021. 2021. An organic compound contains 78% by weight carbon
and remaining percentage and remaining percentage of hydrogen what is the empirical formula of this compound? Now try it. What will be the empirical formula of this compound? Right. सर दिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन्स 78%, हमेशा परसेंटेज 100 में होती है, 78% बाई वेट ऑफ कार्बन। तो इसका मतलब मेरे पास जो कार्बन है वो 78% है, तो टोटल परसेंटेज 100 है कार्बन, एंड रिमेनिंग परसेंटेज दैट विल बी आई थिंक 22%, दैट इज 22% ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो मेरे पास कार्बन 78% है, हाइड्रोजन 22% है, तो मुझे क्या निकालनी है? मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालनी है। नाउ what is the empirical formula? What will be the empirical formula, please? Solution. सर फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स, नीट में आपने ऐसे नहीं करना है, थिंक विदाउट इंक से हो जाता है, ठीक है ना? एलिमेंट्स। सेकंड में हमने रेशो या परसेंटेज लिखनी है। थर्ड में हमने एटॉमिक मास लिखना है। फोर्थ में हमने रेशो, किसका? रेशो और परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। फिर हमने डिवाइड करना है सिंपलेस्ट रेशो से, देन वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड फॉर्मूला। नाउ सर क्या आएगा? एलिमेंट्स कौन कौन सी है? सर an organic compound contains 78% of by weight of carbon, तो मेरे पास क्या है? कार्बन है एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन की परसेंटेज क्या है? सर कार्बन की परसेंटेज 78% है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 22 है। अब मेरे बेटे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, तो क्या आएगा? 78 डिवाइड बाय 12, दैट विल बी 6 point something, 6.5। अब इसी तरह दैट इज 22 डिवाइड बाय 1, दैट इज 1, सॉरी दैट इज 22 divided by 1 is 22. Now we have simplest formula here, 6.5, that will be 6.5 divided by 6.5, that will be 1। इसी तरह 22 divided by 6.5, that will be 620, that will be 3 approximately 3.3, राउंडिंग ऑफ करके 3 approximately। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हाँ दिस द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? नाउ रिक्वायर्ड empirical formula is C1। now this is the empirical formula, can you get molecular formula? What is its molecular formula? We will find then, ठीक है ना? Now another type of question.
Question. Calculate the empirical formula. Calculate the empirical formula if a compound has C comma H and N in the ratio 9:1 is to 3.5. 9:1 is to 3.5. Also calculate molecular formula if molecular mass is 108. Right. One zero eight. Now, hope आपने ट्राई की होगी. Calculate the empirical formula of the compound C H comma N. Now the ratio of, अब मैं इसको उड़ाऊंगा. Now the ratio is 9:1:3:5. That is, इसका ratio 9 है, इसका ratio 1 है, इसका ratio 3.5 है. As you know, atomic mass of carbon, this is ratio atomic mass of different elements. Atomic mass of carbon is 12. Atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass of nitrogen is 14. Is it clear? Now the ratio will be 9:12, 1:1, 3:4. 3.5 divided by 4. 9 divided by 12. 1 divided by 1. 3.5 divided by 14. It will be 9, 3, 3 are 9, 3, 4 are 12. That will be 3 by 4. That will be 0.75. 1 divided by 1. That will be 1. And it will be approximately 0.25. Is it clear? 0.75, 1, 0.25. Now the simplest ratio is 0.25. Now I will divide 0.75 divided by 0.25. 1 divided by 0.25. That will be 4. 0.25 divided by 0.25. That will be 1. And 0.75 divided by 0.25. That will be 3. Now the empirical formula is C3H4 N1. This is the empirical formula. Now second question is also calculate the molecular formula. For that we have to calculate the N. N is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass. Now what is molecular formula mass? Molecular formula mass is 108. Empirical formula mass is 12 into 3 plus 1 into 4 plus 14. That will be 636 plus 4 plus 14. Is it clear? Yeah. 3 2 are 6, 3 3 1 3. That will be 40 plus 14. That will be 54. Now
108 divided by 54, that will be 2. Is it clear? That will be 2. Now n की वैल्यू क्या आई? 2. अब आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालनी है. नो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to n into empirical formula. Is it clear? Now molecular formula is equal to, molecular formula is equal to molecular formula is equal to C3H4N1 into 2. That will be 2 3 are 6, C6H8ON2. This is your molecular formula. Now last homework question. An oxide of iodine, atomic mass is equal to 127, contains, sir kitna? Contains 25.4 gram of iodine and 8 gram of oxygen. Its formula would be, it will be homework. Hope you have enjoyed the session. Thank you.